planned and organized to spread out this positivity amongst ourselves in this crisis. We are all passing through tough times. We all have our personal, professional issues which we are not able to share or which we are not able to solve. So, AMA, as a part of the society, had brought this up where a platform where everyone can come together and share their thoughts, their problems, and through this medium, we have brought some experts, some life coaches who will help you to bring some fruitful solutions by interacting with you. So, for today, our expert with us is Sunita Didi from Brahma Kumaris Raj Yogiti. Welcome, ma'am. Welcome, welcome, everyone. I'll quickly just give 1 minute synopsis of Sunita Didi. Sunita Didi has a powerful, clear personal vision to bring science, psychology, and spirituality together in the service of developing world sovereigns through self sovereignty. She is an international management consultant holding a PhD degree in spirituality in management after her MBA from Southern Adventist University, USA. Sunita Didi has been associated with Brahma Kumaris since 40 years, a life member of its media wing, and presently she is a senior Raj Yoga teacher at Shantivan Brahma Kumaris headquarters, Abu. Sunita Didi is deals with behavioral issues of various corporates and tries to bring solutions through spirituality and psychology. She has been invited as as honorable guest speaker and keynote speakers at various national and international conferences. Sunita Didi has given lectures at various places across India and across the globe. She is known for her engaging high energy style, practical wisdom, sense of humor, and her ability to make learning a fun, which I think you will all be in like witnessing it for today's session. So before handing over the session, before kicking off the session, I just give some instructions to the participants. So we are also live streaming this on YouTube simultaneously. So the participants, those who are on YouTube also, they will be also engaged through the chat box live chat option there. Participants who are on Zoom, they can engage themselves by chat options, and whenever you want to ask some question, you can just through reactions just ask for unmuting. So I will manually unmute you for that question, and again the next will be turn by turn. If you don't, you can put your video off. You can disclose your identity in case you have any confidential thing, any personal issues which you don't want to share your identity. It's up to you. It's an open platform to share it, to spread out the positivity. So anyone who would like to go first, we'll kick off with that questions. So to begin with, I have one question in the chat box. So I would like to start off Sunita Didi with that. Okay. So Sunita Didi, there is a question that in present times, uh, the people are like the person is not able to focus on the personal, not able to have the balance between the personal and professional life. They are getting too much stress, like the person is getting stressed because of and depressed sometimes.
So, what would you suggest, please? Om Shanti, and a very, very golden morning to all of you. And first of all, I would like to, in fact, thank AMA, the inspirational leaders of AMA, Dr. Rajshekhar ji, Dr. Mukund ji, as well as Radhika ji, and your entire team to have given this wonderful opportunity. And what a beautiful topic you have chosen. Keep the positivity life. Yeah. So, because this corona has brought us on, all of us onto this online platform where we are since last year, we are doing live programs. And so the topic that we have chosen is to keep positivity live. Let's keep that live all together. So very nice, very beautiful topic. And it's all about question and answer session, which is also very important. Instead of I just speaking and speaking and you only listening and listening, it's good that I'll also listen to your questions and then answer accordingly. Because once I had read somewhere, when I was doing those programs in the corporates, and on their that writing pad, there was a very nice slogan written there, and it was said in that slogan, it was like the those who listen, they are very wise, and those who are speaking, they are very knowledgeful, right? So, well, I thought it's good to be even wise to listen to your questions, isn't it? So, the question that you have raised is about the balance in life, balance in personal life as well as in professional life. Now, this question is not only because of corona pandemic, but because this question has been there even before corona, where people were going out into the workplace and yet they could not find that right balance between the work and home. And now, when they are at home and working from home, again, it is the same question about how to have maintained that balance between work and home, right? So, balance actually, it is not external, balance is within us. And so when we realize that balance is inside here, not outside, automatically whether we are working from home or whether we are going out into the workplace and working from there, we will always have a good balance. Because when do we actually do not balance? When we carry the thoughts of home to work and work to home, and when we are doing both the same things at home also, from home itself, again, our mind is in complexity. You know, it is wandering about. So when our mind is stable here inside, then there is balance. And our mind is only giving priority consciously. If we give priority to the present moment now, what we are doing, then it's very easy to keep ourselves in balance. I remember this juggler, juggling with balls. Now, when the juggler juggles with balls, what happens? You find that, oh, he's so much balanced. There are so many balls he's juggling at the same time. There's one ball falling after the another, and he's not missing anybody. He's able to hit each and every one. Now, what is the reason, do you think, that he's able to do that? Actually, if you concentrate and look at him juggling, you'll find that the ball which is falling down, he's only focused upon that. He hits that and that ball goes away. He's not bothered about it. Again, he's focused upon the ball which is falling down. So at the same time, he's able to juggle with so many balls. So also, this teaches us a very good lesson for balancing. That is just focus on the present moment now, what I need to do. Instead of brooding over the past, oh, I shouldn't have done that, I shouldn't have done this. Or instead of being anxious about the future, what's going to happen. So when our mind is floating in the past or in the future, it's flying in the future, then we are not focused in the present and take out the best out of the present. And so there is that imbalance.
So in order to be balanced, focus on the present, in the now, and on your priority. Thank you. Om Shanti. It was really, I hope the participant who have asked it have found the answer. So there is another question from Mr. Jignesh. He has revealed his identity. So how to be focused on now? Okay, so is Jignesh present now? So can you Yeah, unmute him? yeah. Jignesh, you would like to unmute yourself to ask it? Or I think because the power to unmute is with the host, so Yeah, yeah. So I will unmute him. Yeah, Jignesh, Jignesh ji. Yeah, please ask your question. I think he is not able to. okay, He has been unmuted. I'll just repeat his question. yes, How to be focused on now? He yes. means it is spontaneous to mind because it is spontaneous because mind is wavering every time. We don't have lack of focus. Is that the question? Like, A very good question, Mr. Jignesh ji, that you have asked, and it is the need of the hour today for everybody actually, from children to elders. Everybody are having this difficulty of being focused, right? So, and we say, हिंदी में बोलते हैं ना कि मन एक चंचल घोड़े के समान है जो दौड़ता ही रहता है हमेशा, और उसको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है. तो लेकिन उसको काबू करने के लिए क्या करें? Because when the mind is just wandering about here and there like a wild horse, the rein of that horse, if that is in the control, then we can control the horse very nicely. So in order to focus in the present, we need to find out that rein of this mind which is wandering about. And that rein, that lagam, that is the intellect. The intellect is one of the faculty of the soul which has the power to decide, the power to choose. Because see, there's so many different types of thoughts in our mind coming now and then. There are positive, negative, waste, routine, all types of thoughts are there in a mind. And it is said that in a whole day, there may be more than 70, 80 thousands of thoughts that we create, right? Now, so many thoughts. Now, say, for example, now in the present moment, I'm having a thought of speaking to you about how to focus in the present. At the same time, if I have a thought, I'm feeling thirsty, I want to drink water. At the same time, I have a thought, oh, let me see what would be the next question that is coming up. At the same time, if I have a thought, oh, I need to switch off the fan, it's making a noise maybe. Or there's different type of thoughts that are emerging in my mind. And if I start executing each one of them, I go to close the fan, take a glass and drink water and speaking also, and I'm looking at the question, you'll find me so clumsy. What is she doing all this, right? And like a joker, isn't it? But that doesn't happen in practical. We do not execute all the thoughts at the same time. What is happening, what is the system that is happening inside us is when the mind is creating so many thoughts, there's an intellect which is actually filtering these thoughts, and it is choosing, it is deciding which thought should be actually executed in the present moment. So it is the intellect. The secret is the intellect, which is the rein, which we need to control, which we need to focus upon. So this intellect is the third eye of wisdom. कहते हैं ना सद्बुद्धि दो, भगवान इसको सद्बुद्धि देना. We say that way. We don't say सत मन देना, but सद्बुद्धि देना, right? Because the knowledge is holded in the intellect. Now this intellect, which is the third eye of wisdom, that means it is through the eye of knowledge, this wisdom, that we visualize. Have you ever noticed that when you are very deep, grossly involved, and very concentrated in reading newspapers or watching television about maybe corona pandemic news, or maybe nowadays WhatsApp, all messages, you're very, very concentrated and focused upon looking at the messages, and someone passes by and you do not even notice that, isn't it? What is happening around you?
And you say, oh, what happened? What did you say? Oh, who passed by? Did you pass by? Like, you're so astonished about it because you're fully concentrated. Now, what is that concentration on that? That whatever you're reading, you're also, the intellect is also visualizing the same thing. And that is the focus, right? So, in order to increase our focus, we need to pay attention on this intellect, that we visualize what we want, instead of just visualizing anything that comes there, all the thoughts that are coming in the mind. Just choose, decide what I want, and then visualize that. And the moment we do that, we are able to focus on what we want to focus. Try this and you'll find that you are successful. Thank you. Om Shanti. Thank you, Didi. The next question is how to remain positive with children having negative performance in studies. I think this question would be some parents' question because online education had made it very difficult for the parents and the children, which is affecting negatively on their long-term education point of view, their mental stability. So what is how to remain positive and calm during this time? Yes. So a good parenting tip you would like to have, right? Of when how to remain positive when the children are not able to do it, right? So when the children are not concentrating on their studies or whatever is happening with the children. So recently I had a very good program also with another institute, and there this tip everybody really liked it. And you also may experiment this, whoever has asked this question, and to everybody in general also, that what is important is how would you like to have your children to do, what you want in your children. You should focus only on that. Say, for example, you want your children to be studying online seriously and not, being distracted by other things online, right? And only focus on what they want to study online. So you visualize that, yes, your children are doing that. Have faith in them. Appreciate them doing, even if they do for just 1 minute. Appreciate, oh, you could do that, and that's so nice. And because you could do that, this is the benefit out of it, right? So appreciate them, whatever they are doing, even for a minute, appreciate the positivity in them. Visualize what you want them to do. Focus only on that aspect. And when you do that, you radiate that vibrations of faith in them, which will empower them to do what you want them to do. Because this faith aspect is very, very important. I recollect a very good story, a practical life example I would like to illustrate here. And it is about a small boy, a small child. And he brought one letter from his principal. The principal said that take this letter to your mother, to your parents, and tell your give this letter to your mother. And that small boy, very obedient, he just took that letter as it is from the principal, came home and gave it to the mother. The mother, when she read the letter, what happened? There were tears rolling out of her eyes. The boy asked, what happened, mother? What's written in the letter? The mother said, you are the best intelligent boy in the world, and therefore the best school for you is only home, and only I will be teaching you from now onwards, because you're so intelligent, you're so good, that there is no school which is capable of giving or teaching you or uplifting you. And that boy was so happy, he just hugged his mother. And then when he grew up, and when his mother was no more, he was cleaning his mother's room. And when he was cleaning, he found that same letter which the principal had given to him to give it to her mother. And when he opened that letter, and when he read that, now tears rolled out of his eyes. And below the letter, he wrote that, thanks, mom, that it was you, your faith in me, that made me Thomas Edison, the world famous
scientists today, right? And what was written in the letter? It was written that this boy is the dullest student and no school will be able to ever keep it, right? And so please, you do not send this boy again to school the next day. This was written by the principal. And look how the mother responded with so much of faith, seeing the positivity in what in her child, right? So this works. The power of faith, the power of positivity works. We need to keep faith in that, and we need to visualize that. We need to speak about the only, even if you see one aspect of positivity, only speak about that, and that will grow in your child. Thank you. Om Shanti. Thank you, Didi. We have Mr. Sirish who would like to ask a question. What name did you say? Mr. Sirish Digvi. Mr. Sirish. Sirish, Mr. Shirish ji. Okay. Didi, namaste. My question is, building values in the childhood, it happens because of our parents, our grandparents, and school. In the society also, there are so many avenues where we can go and learn and build values. But I was thinking, if we had to do it in organizations, how do we do it? Because in organizations, we always run after business and many other things. But building values is a little, we find it little difficult to find time. So any guidance on that, Didi? Sure. Thank you so much, Shirish ji, and it's a lovely question because this is the need of the hour today, right? And when we say that we are all after actually business and everything, that means we are all after going after standard of living. And building values is to go after standard of life, right? So we need to pay attention to actually build upon a standard of life rather than a standard of living. And for that, we need to start from our own self, right? So it's not the schools, it's not the organization, it's not the society, it's not the parents, it's not the others who are responsible for the values in me. It is my own self. I need to choose to live by values. And when I choose to live by values, I automatically radiate that values in the environment because values are not taught, values are caught, right? So if we want that today's children, they also learn values, it's very important that we implement values in our life. And because children are very, very clever in imitating, in copying. So if we implement values and if we radiate that values, automatically the children will also see that, yes, my father, my mother, my sister, my brother are doing like this. So even they will catch those values in them. So today we do have a particular one subject also in the organization, value education, which was made compulsory by the government, and now there's a new education policy, so I think there would be also that subject there. But it's not only that when that subject is there is to be taught or only during that class that we should be talking about values, but as I said, that values should, it's like a standard of life, so it's like we should live those values in ourselves, and when we do that, automatically it radiates, it empowers others, that energy radiates, and that creates a powerful environment in which everybody, even if they are not observing values, they will realize, because unless there is no realization, there's no transformation. So that realization to come, it has to come from within. And that energy to come from within, it's only when from within we radiate that powerful energy of values. So thank you so much. Always remember, values are taught and not taught. Thank you. Anybody else? Thank you, Sirishri, for putting up that question. अगला जो प्रश्न है मैं हिंदी में पूछना चाहूंगी दीदी.
हमारे दिमाग, हमारे मन को ये गंभीर अवस्था, ये जो कठिनाई चल रही है, इसमें कैसे हम मजबूत बनाए, हमारे विल पावर को, जो हमारी इच्छा शक्ति है, उसको कैसे मजबूत बनना है। एक क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंदी में, उन्होंने हिंदी में पूछा है, तो मैंने आपको। हाँ जी, जरूर से। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सबका कि हम अपने मन को कैसे मजबूत करें। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अपने मन को मजबूत करने के लिए हमें बुद्धि रूपी नेत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि बुद्धि ही लगाम है हमारे मन रूपी घोड़े की। और जितना जितना हम इस बुद्धि रूपी नेत्र से विजुअलाइज करेंगे जो हम चाहते हैं, जो भी हम जीवन में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हेल्दी रहे, तो हम अपने आप को संकल्प दें कि हम हेल्दी हैं, और सिर्फ संकल्प नहीं दें लेकिन वैसा विजुअलाइज करें। तो जब हम बुद्धि रूपी नेत्र से वैसा विजुअलाइज करेंगे तो हमारा विल पावर बढ़ेगा, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और हम वो कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो इसलिए जो हम सोचते हैं उसको वैसा ही हम दृश्य देखें, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण कैसा है वो ज्यादा उस पर निर्भर करता है। अगर हमारा दृष्टिकोण ही नेगेटिव है हर चीज के प्रति, तो फिर हम कुछ करना भी चाहेंगे तो वो हमारी इच्छा शक्ति उसको करने नहीं देगी, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव है। हम वो इच्छा शक्ति पैदा नहीं कर पाएंगे उसको करने के लिए। इसलिए हमें अपना नजरिया, देखने का जो नजरिया है, उसको हम पॉजिटिव बना के रखें। और जब वो पॉजिटिव रहेगा तो बाहर दृश्य चाहे कैसा भी हो, बाहर का दृश्य चाहे कितना भी तूफानी क्यों ना हो, कैसा भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन अंदर में हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी सोच कैसी है, उसके ऊपर हमें अटेंशन करना है। और जैसे ही हम अपनी सोच को पॉजिटिव कर देंगे, और वही उसी सोच को विजुअलाइज करेंगे, वही पॉजिटिविटी को हमारी बुद्धि से विजुअलाइज करके एकाग्र करेंगे, तो हमारा विल पावर बढ़ेगा। और दूसरी बात, आज हम देखते हैं कि आत्मा की शक्ति जो है वो बहुत घट गई है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए एक ऐसा सोर्स जिससे साथ हमारा कनेक्शन हो, ताकि हमारी शक्ति बढ़ जाए। आज लाइव जाने के लिए भी, जब हम लाइव जाते हैं तो हमें एक बहुत पावरफुल बैंडविड्थ चाहिए। तो ये हम अपने वीडियो के साथ भी बहुत अच्छा लाइव कंटिन्यूसली जा सकते हैं। अगर बैंडविड्थ पावरफुल नहीं हो तो हम सिर्फ ऑडियो ही ऑन करके रखेंगे, वीडियो नहीं ऑन करेंगे, क्योंकि वीडियो और के साथ जाने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होता है। और एक प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, हम अनेक प्लेटफॉर्म पे लाइव जा सकते हैं अगर बैंडविड्थ अच्छा हो। तो वैसे ही आत्मा की शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अर्थात बैंडविड्थ को पावरफुल करने के लिए, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा उस सोर्स के साथ जो एकदम पावरफुल है, जो सदा पॉजिटिव है। और वो सोर्स है परम आत्मा, जो हम सभी आत्माओं का पिता है। तो जब हम परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ देते हैं, तो जैसा संग वैसा रंग लग जाता है, और हमारी इच्छा शक्ति और मजबूत हो जाती है, क्योंकि जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान, है ना। तो और हमारा विश्वास खुद में और परमात्मा में, ये दोनों विश्वास की जो शक्ति है वो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ा देती है, और फिर कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। जब हमारी अंदर की ज्योत जग जाती है तो बाहर का अंधकार कुछ कर नहीं सकता। हमेशा याद रखिए कि हमारे अंदर की ज्योत, विश्वास की ज्योत, पॉजिटिविटी की ज्योत, परमात्मा के साथ बुद्धि के कनेक्शन की ज्योत जब जग जाती है, तो उस ज्योत से, उस स्विच ऑन से सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अगला जो प्रश्न है, जो पिनाकिन जी ने पूछा है चैट में, कि ये वर्ष और इसके पिछले वर्ष हमारा भगवान पर से कुछ लोगों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या हमारा कलयुग शुरू हो गया है, कोरोना, म्यूकरमाइकोसिस, साइक्लोन, ये सब आने लगा है, तो
हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे यंग, जिसका अभी उम्र ही कुछ नहीं है, वो लोगों की मृत्यु, ये सब देख के तो लाइफ इतनी, मतलब जीवन इतना मुश्किल समय से गुजर रहा है कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा है और नेगेटिविटी आने लगी है जीवन में। इसका प्रश्न है ये, क्या नाम है? पिनाकिन शाह। पिनाकिन जी। हाँ जी। हाँ जी, जो सभी के मन में जो प्रश्न है ना, वो आपने पूछ लिया है, और इसका उत्तर जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम जब भी किसी के ऊपर उंगली पॉइंट आउट करते हैं ना, आज की बात नहीं है, लेकिन कोरोना के पहले भी, जब भी हम उंगली दूसरे पे पॉइंट आउट करते हैं, तो क्या कहते हैं हम? कि 3 उंगली हमारे तरफ है और अंगूठा ऊपर की तरफ, अर्थात भगवान को भी हम छोड़ते नहीं थे। अभी की बात नहीं है, पहले भी जब बहुत अति दुख किसी कोई देखता है, तो भगवान को कहता है, हे भगवान, तूने मेरे भाग्य में ही क्यों ये सब लिख दिया है? मैं ही मिला क्या तेरे को ये सब करने के लिए, है ना? तो ये तो कंप्लेंट करने की, ब्लेम गेम करने की, तो ये जैसे हमने अपना नेचर ही बना दिया है। तो इसलिए आज जब हम ये सब सिचुएशंस देख रहे हैं, तो हमने अपने इस नेचर को और स्ट्रांग ही हम करते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें वापस, अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है और फेथ हमारा बनाए रखना है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, तो हमें इस चीज को देखें। पिनाकिन जी, आप इस प्रकार से अंगुली उठाइए और देखिए कि जब आप इस प्रकार से अंगुली उठाते हैं, एक अंगुली उधर है, 3 अपनी तरफ है, एक ऊपर है, राइट? तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि जब आप दूसरे को पॉइंट आउट करते हो तो 3 आपकी तरफ है, ये अर्थ तो बहुत कॉमन है, लेकिन और सोचिए कि इसका और क्या अर्थ हो सकता है। और सोचिए क्या हो सकता है। पिनाकिन भाई जी, आप कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। इसका क्या अर्थ हो सकता है, और कोई अर्थ हो सकता है इसका? भाई आप खुद को मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अगर खुल के। सब भी सोचिए और क्या अर्थ इसका हो सकता है। पिनाकिन भाई बताइए। ये तो एक कॉमन अर्थ है कि एक उंगली जब हम दूसरों की तरफ करते हैं तो 3 हमारी तरफ है, या 4 हमारी तरफ है, जो भी है, लेकिन दूसरा और क्या अर्थ इसका निकल सकता है? बताइए, कोई बता सकता है? पिनाकिन भाई, आप बताना चाहेंगे? खैर, समय की पाबंदी को देखते हुए मैं ही आपको बता देती हूँ। इसका एक और अर्थ और ये निकलता है कि 10, एक उंगली आपकी तरफ है, मतलब 10% आपकी फॉल्ट है, कोरोना की फॉल्ट है, जो सिचुएशंस हो रहे हैं उसकी फॉल्ट है, लेकिन 90% मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज किसके पास हुआ? हु इज इन चार्ज, आप या मैं? कौन इंचार्ज है, कोरोना या मैं? कौन इंचार्ज हुआ? 90% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली आई एम इंचार्ज, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो जब इस प्रकार से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ही हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हमने ब्लेम करना शुरू कर दिया और ब्लेम करते रहेंगे, तो कभी भी सोल्यूशन नहीं आएगा। देखिए कि आप सवेरे उठते हैं और आप सोचते हैं कि अच्छा, कल सवेरे मैं जब उठूंगा तो मैं जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, ठीक है? कल सवेरे से लॉकडाउन खत्म है और अभी मैं कल से बाहर जाऊंगा मॉर्निंग वॉक के लिए। आप जैसे ही उठते हो, कि तो लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं, और आप उठते हो और अचानक क्या होता है, साइक्लोन के कारण तेज तूफानी बारिश हो जाती है। अब आप कहते हो, लो मैंने तो सोचा था आज तो मैं जाऊंगा मॉर्निंग वॉक, और देखो ये साइक्लोन तूफानी बारिश, अब तो मैं नहीं जा सकता, तो आज भी अब मैं नहीं जाऊंगा। अब दूसरा ही व्यक्ति जिसने आप ही की तरह सोचा कि अरे
मैं तो जाने वाला हूँ, और वही सिचुएशन साइक्लोनी तूफान, लेकिन वो दृढ़ रहता है कि नहीं, मुझे तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए। मैंने दृढ़ किया है, काफी समय बैठे रहे लॉकडाउन अंदर, आज तो मैंने दृढ़ किया, आज तो मुझे जाना ही है, चाहे तूफानी बारिश है या कुछ भी, मुझे तो जाना ही है। अगर वो दृढ़ कर ले इस बात को, अपनी बात को कि उसको जाना है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसको जाना है, तो क्या करेगा? छाता ले लेगा, रेनकोट पहन लेगा और चला जाएगा, है ना? अब सिचुएशन तो वही है, लेकिन एक बैठ करके कंप्लेन करके सो जाता है कि चलो नहीं जाना है, और वो सिचुएशन का विक्टिम बन जाता है। दूसरा है जो वही सिचुएशन में दृढ़ता से करता है कि नहीं, मुझे जाना है, तो वो सल्यूशन निकालता है, ऑल्टरनेट देखता है क्या हो सकता है, और वो सिचुएशन वही है, पर वो सिचुएशन का विक्टिम नहीं बनता, सिचुएशन पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही अगर हम कंप्लेंट करते रहेंगे, हेटफुल होते रहेंगे, तो हम ग्रेटफुल होना भूल जाएंगे, और जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो फिर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ग्रेटफुल रहना, जो भी हमको भगवान ने दिया है उसके लिए ग्रेटफुल अगर हम रहते हैं, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, जो भी कोरोना ने हमें लेसन सिखाए हैं उसी को सोच करके अगर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो फिर जिस पर हम जो फीड हम करते हैं वही बढ़ता है हमारे जीवन में। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ब्लेम करने के बजाय हम ग्रेटफुल रहें और सॉल्यूशंस देखें और डील करें नेगेटिविटी को, जो भी सिचुएशन है उसको उस पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको डील करें। ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन को हमें निग्लेक्ट कर देना है कि वो सिचुएशन है ही नहीं, सिचुएशन है, लेकिन उसको डील करना है, छाता लेकर रेनकोट करके उस सिचुएशन से डील किया। ऐसे ही हर सिचुएशन का हमें सामना करना है, लेकिन कैसे? यहाँ पे अंदर में स्टेबल होकर अपने में और परमात्मा पे विश्वास रख के करना है। कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं भी होता है, तो भी विश्वास रखें कि भगवान को के पास कोई ग्रेटर प्लान है जो हमको अभी समझ नहीं है, शायद कि इसके पीछे क्या बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और उस रहस्य को समझने की कोशिश करें। उस परमात्मा का जो ग्रेटर प्लान है उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या वो रहस्य हो सकता है, वो समय का क्या राज हो सकता है जिसके कारण आज ये परिस्थिति सब हो रही है। और फिर अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे कि मुझे क्या सावधानी बरतनी है ताकि ये सिचुएशन मुझ पर हावी ना हो जाए। और अगर मैंने अपने ऊपर सावधानी बरत ली, तो फिर आई विल बी एम्पावर्ड, मैं सक्षम रहूंगी कि मैं औरों को भी अब सक्षम कर सकूं। इसीलिए कहते हैं ना, जब प्लेन में बैठते हैं तो कहते हैं कि फर्स्ट अपने आप को सुरक्षित कर लो, मास्क जो गिरता है ऑक्सीजन मास्क, वो पहले खुद पहन लो, फिर अपने बच्चे या किसी भी अड़ोस पड़ोस को हेल्प करना। तो ऐसे ही जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि मैं इंचार्ज हूँ, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, दृश्य को चेंज करने के पीछे एफर्ट नहीं करना है, और ये समय जो मुझे मिला है ये मुझे अपने इस दृष्टिकोण को और पॉजिटिव बनाने के लिए मिला है, कैरेक्टर बिल्डिंग बनाने के लिए, एक संस्कार बनाने के लिए मिला है, और जैसा मेरा संस्कार होगा वैसा ही संसार होगा। क्योंकि जो भी सिचुएशन बाहर है वो हमारे ही मन की सोच की रिफ्लेक्शन है, वही है, वो उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। हमारे ही नेगेटिव विचारों के कारण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब विचारों के कारण हमने ये कलयुगी दुनिया हमने ही क्रिएट की है, भगवान ने नहीं क्रिएट की, हमारे ही कर्मों का ये फल है। तो इसलिए मुझे अपने ही कर्मों पे अटेंशन दे करके उसको श्रेष्ठ करना है। ये समय है दुआएं जमा करने का समय, लोगों को हेल्प करने का समय, जो भगवान ने मुझे दिया है उसके प्रति ग्रेटफुल रहकर उसको बांटने का समय। जितना बांटेंगी तो दुआएं जमा होगी,
और ये जो दुआएं हैं ये एक स्पेयर टायर की तरह काम करती है कि जब गाड़ी का कोई भी टायर पंक्चर होता है तो जो डिक्की में पड़ा स्पेयर टायर होता है वो उस समय यूज हो जाता है। तो इसलिए ये पॉजिटिविटी, ये दुआएं जमा करने का समय है, न कि दोष देने का समय है। और जब ये दुआएं हम जमा करेंगे और हमने अगर पिछले कई समय पर वो दुआएं अगर जमा की है तो वो भी वो एक शक्ति अभी भी हमें मदद करती है। और यही मदद है कि आज इस प्रकार के ज्ञान के लेन देन में भी आज हम सभी मिल करके इस प्रकार का लेन देन कर रहे हैं। ये भी तो एक भगवान का पॉजिटिव सिग्नल ही कहेंगे ना। तो इस प्रकार से हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा, और अगर हमारा अटेंशन नेगेटिव पे रहेगा तो नेगेटिव ही बढ़ता जाएगा। तो अपने आप से पूछे हम क्या चाहते हैं, नेगेटिव बढ़ाना चाहते हैं या पॉजिटिव बढ़ाना चाहते हैं। और रही बात जो हम देखते हैं अकाले मृत्यु हो रही है, जो यंग है वो भी आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि हर एक आत्मा का इस सृष्टि रूपी चक्र पर, जो शेक्सपियर ने कहा कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। तो हर एक एक्टर का, हर एक आत्मा का अपना अपना एक पार्ट है जो फिक्स किया हुआ है। तो हर एक अपने अपने समय पर आता है, अपने समय पर जाता है। कोई न कोई कारण, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो बीमारी हो, कोई भी प्रकार की, चाहे कोई भी प्रकार की सिचुएशन हो, कोई ना कोई कारण बन जाता है। लेकिन हर एक का अपना अपना एक पार्ट है, और वो जैसा जिसका पार्ट मिला हुआ है वो पार्ट वैसे बचा अपने कर्मों अनुसार वही वो पार्ट बचा कर जाता है। और हमेशा एक बात याद रखें कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने है वही हमारे लिए, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे प्रेजेंट समय के लिए वही सही है। इसलिए उस पर शंका नहीं करें, उस पर विश्वास रखें, और हम जो आगे के लिए हम अच्छा चाहते हैं हमारे लिए वह विजुअलाइज करें और आगे बढ़ें। थैंक यू। ओके, एनी अदर थैंक यू क्वेश्चन? दीदी। पिनाकिन भाई, यू वांट टू, उनके प्रश्न में थोड़ा उनको ऐड करना है शायद। पिनाकिन भाई, यस मैडम। हाँ प्लीज, आप बात कर सकते हैं, आप ओपन फोरम है, आप पूछ सकते हैं। हाँ दीदी, दीदी मेरा आपको सुनाई देता है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन गलत प्रेजेंट किया गया है। मैंने भगवान पे कोई ब्लेम नहीं किया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मानो किसी के घर में किसी की मदर या किसी का फादर, उसके बच्चे छोटे हैं और उसको जो परेशानी, अभी जो ऐसे बहुत सारे किस्से हो रहे, इधर इधर हमारे ये जो साइक्लोन की वजह से है या कोई कोरोना की वजह से है, जिसका घर में बहुत सारी डिफिकल्टी अभी से आ रही। जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ लास्ट मई अप्रैल मई से, तब से ये जो कठिनाई चालू हुई है तो बहुत सारे फैमिली उसमें अफेक्ट हुए। तो ये उसके हिसाब से बहुत लोग दुखी हो रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, तो ये जो सिचुएशन ये भगवान की ओर से ये जो कलयुग का है, मेरा प्रश्न यही था। मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मेरे भगवान से मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ और मैं बहुत सेवा की करता हूँ। नहीं नाकिन भाई, आई अग्री। शायद मेरा समझने में कोई थोड़ी, बात नहीं, कोई नहीं, नो इश्यू, नो इश्यू। दीदी आप थोड़ा इस पे बात कर सकते हैं, क्या सही में कलयुग की तरफ ये इशारा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी कलयुग की ही निशानियां, अति कलयुग की। और हर अति का अंत होता है और एक नई शुरुआत होती है, इसलिए सतयुग अब जल्दी ही आना भी है। तो हमें अब उस सतयुग की जाने की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करना है। अभी सबकी रिटर्न जर्नी का समय है, तो इसके लिए हमें सतयुग में जाने की तैयारी का समय कर अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए वैसे संस्कार बनाना है। ये समय का इशारा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी ही समय है कि हम अपने संस्कारों को इतना पॉजिटिव बनाए, इतना श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं। ये तो एक शरीर रूपी चोला छोड़ के दूसरा ले लेती है, और आत्मा के साथ क्या जाता है? ये सब जो हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके पीछे ये धन दौलत आदि, ये सब कुछ तो यही रह जाएगा।
लेकिन सच्चा धन हमारे संस्कारों का धन है जो हमारे साथ जाएगा। इसलिए इस धन को अभी अक्यूमुलेट करें, इसको बिल्डअप करें। आज लोग ये देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि मुझे दूसरे की कोई परवाह नहीं है, बस मेरा धन मेरे पास आ जाए, दूसरा चाहे डूबे मरे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये संस्कार जो आप अगर साथ ले जाएंगे तो वैसा ही फिर आपका भविष्य होगा। इसके लिए हमें अपने संस्कारों का निर्माण करने का यही तो परीक्षा है, यही तो मौका है कि मुझे खुद को भी सुरक्षित करना है और दूसरे को भी एनलाइटन करना है। जैसे हमेशा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक कैंडल है, मोमबत्ती है, और एक आइसक्रीम है। दोनों में कॉमन विशेषता क्या है कि दोनों मेल्ट होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आइसक्रीम के लिए कहते हैं कि खा लो जल्दी, पिघल जाए उसके पहले, है ना, कहीं आप इसको खो ना दे, इसलिए खा लो जल्दी, कंज्यूम कर लो, टेक अपने अंदर उसको ले लो। लेकिन कैंडल के लिए क्या कहते हैं? एक दूसरा दिया, एक दूसरी मोमबत्ती जला लो ये बुझ जाने के पहले, है ना। तो कितना ऊंचा पर्पस है, देने का भाव है। तो इस प्रकार से कि दूसरों की भी हम उन्नति करें, दूसरों के लिए भी भला सोच लें। ये जीवन तो आज है, ये शरीर तो आज है, कल नहीं है, लेकिन उसके पहले हम सबका भला सोचें, सबका भला हो जाए और ऐसी भावना से हम जिए। इस प्रकार की भावना से जीने के लिए ही ये समय है। तो ऐसे हम श्रेष्ठ कर्म करें, दुआएं जमा करते रहें, तो हम जल्दी ही अपने दैवी संस्कार बनाकर एक दैवी दुनिया, सत्युगी दुनिया इस धरा पर ले आएंगे। थैंक यू। ओम शांति। एंड अभी थैंक यू समय हो चुका है। मैं समझती हूँ कि प्रश्नों की तो क्यू बहुत लंबी होगी। हो सकता है कि हम दूसरा सेशन कहीं अगली बार कर लें और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम कोई एक दूसरा सेशन अगली बार उसमें वो प्रश्न ले लें। ये रिक्वेस्ट होगी। हाँ जी जी। जी दीदी, जी दीदी, मैं अभी वही बताने आ रही थी कि समय हो गया है, इट्स टाइम टू रैप अप। आई अंडरस्टैंड आप लोगों, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सुनीता दीदी फॉर स्पेयरिंग टाइम, इतना समय देके खुल के इतने शांतिपूर्वक तरीके से पॉजिटिविटी और जो प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसके निवारण बताने के लिए, एंड पार्टिसिपेंट्स भी उनके प्रश्न वो खुल के सामने आके बताने के लिए रेडी हुए, उसके लिए भी थैंक यू। एंड ये सीरीज अभी चलता रहेगा। हम लोग जूम के अलावा इंस्टा पे, फेसबुक पे भी हमारे चैनल पे लाइव सेशंस भी रखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पार्टिसिपेंट्स जो लोग हैं प्लीज एएमए से जुड़े रहें, ताकि नेक्स्ट सेशंस जब भी होंगे सुनीता दीदी जैसे दूसरे एक्सपर्ट भी होंगे तो हम ये सेशंस कंटिन्यू रखेंगे। so we can spread more and more positivity around। जैसे सुनीता दीदी ने बोला है दैट सतयुग की तैयारी करनी है हमको, तो बाय दिस वे हम प्रार्थना करेंगे कि सतयुग जल्दी आ जाएगा। मीनवाइल हम हमारे स्पिरिट्स को हाई रखें, पॉजिटिविटी हाई रखें। सुनीता दीदी आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगी? हाँ जी। थैंक यू वेरी मच एएमए फॉर दिस वंडरफुल सेशन आपने जो ऑर्गेनाइज किया है। डॉक्टर राजशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हैं इस कार्यक्रम में, जुड़े हैं आप? जी जी जी, वो जुड़े। हाँ जी, हम आपसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। डॉक्टर मुकुंद जी आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, और आपका भी फीडबैक, हम दोनों का फीडबैक सुनना चाहेंगे। और दूसरी बात, मैंने चैट में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेजा है, तो आप सभी उसको जरूर से देखें, लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें नए अपडेट्स के लिए। और साथ साथ मैंने एक ईमेल आईडी भी अपना भेजा है key2unlock1@gmail.com। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें भी भेज सकते हैं। So thanks once again। and बस एक बात हमेशा एक मंत्र की तरह सभी याद रखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में कि कोरोना है, लेकिन
प्रोटेक्ट हम किसको कर रहे हैं? अपने अंदर की इस पॉजिटिविटी ज्योत को. लेट्स कीप दिस पॉजिटिविटी लाइफ, नो मैटर कोरोना, नो मैटर एनी अदर सिचुएशन. चाहे वो थर्ड वेव कोरोना का आने वाला हो, चाहे फोर्थ वेव आने वाला हो, चाहे कुछ कोई भी सिचुएशन आने वाला हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हो, नो मैटर व्हाट, अपने अंदर की ये पॉजिटिविटी का ज्योत हमेशा जगाते रहें. तो कोई ताकत नहीं बाहर की सिचुएशन को जो हमारे ऊपर हावी हो सके. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. और हमेशा इस ज्योत को जगाने के लिए परमात्मा से अपना कनेक्शन जरूर रखें, क्योंकि एक वही शक्ति है, वही एक खिवैया है जो हमारे इस जीवन रूपी नैया को इन तूफानों से पार कर देगी, है ना. तो इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ओम शांति. Om Shanti Didi. हम Om Shanti. All the मेडिटेशन अगर कर participants. सके अभी, हाँ, तो Sorry. 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन कर लेते हैं. Yeah, please. I request everyone, please meditate. हाँ, सभी अपने आप को म्यूट कर लें एक बार, और हम सभी सीधे बैठे और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से, खुशी से हम अपने आप से कनेक्ट होने वाले हैं, अपने परमात्मा से कनेक्ट होने वाले हैं. तो प्यार से, खुशी से आंखें भले खुली रखें और हम अपने आप को यहाँ पे विजुलाइज करें. मस्तक के बीच में विजुलाइज करें अपने आप को प्यार से मुस्कुराते हुए, खुशी से यहाँ मस्तक के बीच में विजुलाइज करते हुए एक थॉट क्रिएट करें. वेरी सिंपल थॉट, जो एकदम सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, जिसका न लेंथ है, न ब्रेथ है, न हाइट है, न विड्थ है, और वो सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है एक डॉट, एक छोटा सा डॉट. जो एक बच्चे को भी पेंसिल दे दो तो वो तुरंत वो डॉट बना दे. जो रात को आकाश में हम सितारे देखते हैं, ऐसा एक छोटा सा सिंपल डॉट, और एक सिंपल कलर, वो है वाइट, जिसमें सारे कलर्स मिले हुए हैं. तो एक सिंपल वाइट डॉट को हम यहाँ भ्रकुटी के बीच में विजुलाइज करें, और अब एक थॉट क्रिएट करें कि मैं एक बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक शांति का सफेद सितारा हूँ. मेरे चारों तरफ शांति की ऑरा फैल रही है. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ. मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ. मेरे शरीर की भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है. और ये शरीर एक पिंजरे की तरह है, जिसमें मैं आत्मा एक पंछी की तरह हूँ. और एक पंछी की तरह मैं आत्मा इस पिंजरे से निकलकर अपने बुद्धि रूपी नेत्र से अपने आप को इस आकाश से भी ऊपर उड़ते हुए देख रही हूँ. एक छोटा सा सफेद सितारा आकाश से भी ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश में दुनिया में, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है, उस शांति की दुनिया में अपने आप को देखें. जैसे एक लाल मखमल पर हीरे लगा दिए, कितना सुंदर दृश्य है. और इस शांति धाम में एक बेदाग सर्वशक्तिवान बेदाग हीरा, जो और कोई नहीं
मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, प्रेम का सागर। परमात्मा के सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये वही घर है जिस घर में रहकर हम सुरक्षित हैं, जहां इस दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी वहां पे आ नहीं सकती। बहुत दिल से धन्यवाद दे परमात्मा को। जो कुछ भी परमात्मा ने हमें दिया है उसके लिए थैंक्स, और एक वायदा करें कि आपने जो हमें प्रेम, सुख, शांति का खजाना दिया है, जो पॉजिटिविटी का खजाना दिया है, बस इसी खजाने पर हम फोकस करेंगे, इसी को हम विजुलाइज करेंगे और इसी को हम बढ़ाते जाएंगे, इसी को हम लाइव रखेंगे। इस दृढ़ संकल्प से हम फिर से अपने भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में अपने आप को देखें, और जब इन नेत्रों के द्वारा हम औरों को देखें तो उनमें भी वही देखें कि ये भी परमात्मा की संतान, सभी आत्माएं मेरे अपने हैं, और सबके अंदर उस पॉजिटिविटी के ज्योत को देखें, उसी पे फोकस करें ताकि उनके अंदर भी वही पॉजिटिविटी बढ़ती जाए। और इस प्रकार से पूरे विश्व में हम पॉजिटिविटी को बढ़ाते हुए एक दैवी दुनिया, सत्युगी दुनिया इस धरा पर ले आए। थैंक यू। ओम शांति। Thank you. Om Shanti, everyone. With this positive note, I will end the session. Take care, everyone. Thank you, Sunita Didi, once again. Thank you, Brahma Kumaris. Thank you, all participants. Stay safe, stay positive. Let's always be positive. Okay. Have a nice day ahead. See you, everyone.